بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 55 میں اپنے سبق ابتدائی طبی امداد کی پڑھائی اور وضاحت کرواؤں گی، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 80 اور 81 پر موجود ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 81 کی پڑھائی کریں گے۔ آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ابتدائی طبی امداد کی معنی ہے کسی بھی حادثے کی صورت میں ملنے والی پہلی اور فوری طبی امداد کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ آپ سبق کے اس نام کے ساتھ ہی معنی لکھ لیں کہ اس سے کیا مراد ہے، پینسل کے ساتھ لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اس کے میننگز بھی لکھتے جائیں۔ اور ہوم ورک کے لیے آپ لے لیں جتنی بھی آج آپ کو میں پڑھائی کراؤں گی، تو وہ ساری پڑھائی وہاں تک اور مشکل الفاظ کے معنی اور ساتھ ساتھ جو گرامر ہے وہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اپنی بک کی طرف۔ اچھا، کل والے لیکچر میں ہم نے لڑکا پڑھا تھا اس لڑکے کے بارے میں کہ جب اس نے فلاحی ادارے کے کارکنوں کو حادثے والی جگہ پر رضاکارانہ طور پر ان کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے بڑا متاثر ہوا، اور یہی بات جا کر فلاحی مرکز کے سربراہ سے انہوں نے کہی کہ میں ان سے بڑا متاثر ہوا ہوں اور میں بھی رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے سمجھائیں کہ ابتدائی طبی امداد کس طرح پہنچاتے ہیں۔ تو اس پر سربراہ کہتے ہیں، ہم نے طبی امداد کی پارٹیاں تشکیل دے رکھی ہیں، پارٹیاں یعنی گروپ تشکیل بنائی ہوئی ہیں، اور اس مقصد کے لیے ایمبولینس بھی تیار رہتی ہیں۔ ایمبولینس کا میں نے کل آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جس میں ابتدائی طبی امداد کی سہولیات بھی موجود ہوتی ہیں، جو زخمیوں کو اور حادثے پر موجود جن لوگوں کو چوٹ لگتی ہے، زخمی ہوتے ہیں یا ایسی صورتحال پیش آتی ہے جن کو ہسپتال لے جانا ضروری ہوتا ہے، تو ان کو ابتدائی طبی امداد پہنچا کر ان کو فوری طور پر ہسپتال پہنچاتے ہیں اور ان کی زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کو فوری مدد دی جا سکے۔ فوری مدد یعنی فوراً، بہت جلدی۔ مثلاً چوٹ لگ جائے، ٹھیک ہے، نکسیر پھوٹ جائے۔ نکسیر پھوٹنا اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، آپ لوگوں کی کلاس میں اکثر گرمیوں میں جو ہے بچوں کی ناک سے جو ہے اچانک خون بہنے لگتا ہے، تو اس کو نکسیر بولتے ہیں۔ اچھا، سانپ ڈس لے، پانی میں ڈوبنے یا کسی سبب سے دم گھٹ جانے سے بے ہوش ہو جائے، کسی سبب سے، کسی وجہ سے، ایسی صورت میں ڈاکٹر یا ہسپتال تک لے جانے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، جس سے مریض کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ چوٹ لگنے سے ڈاکٹر تک پہنچانے کے درمیانی وقفے میں کیا جانے والا فوری علاج فرسٹ ایڈ یا ابتدائی طبی امداد کہلاتا ہے۔ یہ آپ انڈر لائن کریں۔ اچھا، یہاں سے چوٹ لگنے سے ڈاکٹر تک پہنچانے کے درمیانی وقفے میں کیا جانے والا فوری علاج فرسٹ ایڈ یا ابتدائی طبی امداد کہلاتا ہے۔ اب اوپر جو صورتحال جس کے بارے میں آپ نے پڑھا، یہ اکثر اور عموماً آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اکثر بچوں کے یا بڑوں کے جو ہے ناک سے خون بہنے لگتا ہے گرمی کی تاثیر کی وجہ سے۔ اکثر لوگ سانپ بھی ان کو ڈس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پانی میں گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر جب لوگ پانی میں نہاتے ہیں تو وہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں لوگوں کو ابتدائی طبی امداد پہنچانا بہت ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ان کی زندگی خطرے سے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس فوری علاج کو کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ ایڈ یا ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ اچھا، ذرا یہ تو بتائیے کہ اگر کسی کو چوٹ زخم لگ جائے اور خون زیادہ بہنے لگے تو ایسی صورت میں فوری علاج کیا ہوگا؟ اب وہ لڑکا پوچھتا ہے کہ اگر کسی کو زخم لگ جائے، چوٹ لگ جائے اور بہت زیادہ خون بہنے لگے تو ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں، کیا طبی امداد پہنچا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال بچے نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ چوٹ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اکثر آپ لوگ چوٹ کی جگہ چھوٹ لکھ لیتے ہیں، مطلب اس کے چھ کے بعد 2 چشمی ہے لگا لیتے ہیں، تو وہ پھر چوٹ نہیں ہوتا، وہ چھوٹ ہوتا ہے۔ چھوٹ جانا نا، یعنی
चले जाना, मुझसे ट्रेन छूट गई है, मुझसे बस छूट गई है, नहीं रह गई है। ठीक है, इसमें फ़र्क करें। और चोट कहते हैं ज़ख़म लगने को, इसमें फ़र्क करें। सरबराह जो है वो उस लड़के के जवाब में कहता है कि सबसे पहले हम बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर खून मुसलसल बहता रहे तो कमज़ोरी बढ़ती चली जाएगी और ज़ख्मी की ज़िंदगी को ख़तरा होगा। अब ज़ाहिर है इंसान जो है उसके जिस्म में जो खून होता है उसकी वजह से ज़िंदा रहता है। अगर ये खून किसी वजह से, चोट लगने की वजह से या किसी और नक्सीर की वजह से ये खून ज़्यादा बहे तो फिर ज़ाहिर है जिस्म में कमज़ोरी आ जाएगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा बहे और इसके रोकने का इंतज़ाम ना किया जाए तो फिर ज़ख्मी की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, यानी वो ज़िंदगी से हाथ भी धो सकता है। इसके लिए क्या करना है हमने कि रुई या कपड़े की गोली बनाकर ज़ख्मों पर बांधना चाहिए। ठीक है, ताकि वो ज़ख़म, उसका जो मुंह है, उसका जो खुली जगह है वो बंद हो जाए। रुई या कपड़ा मौजूद ना हो तो फ़ौरन हथेली को ज़ख़म पर लगाकर बहते खून को रोकना चाहिए। अगर कपड़ा और रुई ऐसी जगह हो जैसे सड़क वगैरह पे हादसा हो जाए और रुई और कपड़ा ना हो तो फिर हाथ की हथेली जो है ज़ख़म पर लगाकर, यानी उस पर रख कर उस बहते खून का रास्ता रोकना चाहिए। ठीक है, हथेली का दबाव ऐन ऊपर नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द की जगह पर रखना चाहिए। यानी जब आप ज़ख़म की ऊपर हथेली का दबाव करते हैं तो वो ऐन ऊपर बिल्कुल दरमियान में, यानी बिल्कुल ज़ख़म की ऊपर नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द जो चारों तरफ की जगह है उस पर हाथ रखना चाहिए, हथेली रखनी चाहिए। ठीक है, ये बताएं। अब लड़का दूसरा सवाल, क्योंकि वो समझना चाहता है ना कि इनके कारकुन किस तरह काम करते हैं या इब्तिदाई तिबी इमदाद हम किन सूरत हाल में किस तरह पहुंचा सकते हैं, तो वो अपने आप को समझाने के लिए सवालात करता है। फिर वो पूछता है कि ये बताएं कि अगर किसी चोट या ज़ख़म के बग़ैर खून बहने लगे, मिसाल के तौर पर नक्सीर फूट जाए, तो क्या ऐसी सूरत में भी खून बंद करने का यही तरीका होगा? लड़के ने बहुत ही अच्छा और मुनासिब सवाल किया था, क्योंकि अक्सर आप लोगों की क्लास में गर्मियों के मौसम में बच्चों की नाक से खून बहने लगता है, तो आप लोगों को ये बात सीखनी चाहिए कि आपने उसके साथ क्या करना है, क्योंकि वो आपका दोस्त है, क्लास फेलो है और ऐसी सूरत हाल में आपने उसकी मदद करनी है। सरबराह समझाते हैं कि नहीं भाई, इसके लिए दूसरा तरीक़ा इख्तियार किया जाता है। सबसे पहले ऐसे शख्स को या बच्चे को हवा के रुख पर बिठाएंगे ताकि उसको तेज़ हवा लग सके। जैसे आपकी क्लास में पंखा लगा हुआ है और बिल्कुल पंखे के ऐन नीचे उसको बिठा दें ताकि उसको हवा लगे। उसका सर पीछे की तरफ झुका बाजू ऊपर उठा देंगे। फिर ठंडे पानी में कपड़ा भिगो कर उसकी नाक और गर्दन पर रखेंगे। यानी उसको गर्मी की तासीर की वजह से अगर ये खून बह रहा है तो नाक और गर्दन पर ये पानी से, ठंडे पानी से भिगोए हुए कपड़े को इसलिए रखेंगे कि वहाँ पे जो शरियानें हैं वो ठंडी हो जाए और खून बहना बंद हो जाए, रुक जाए। नाक में रुई लगा दी जाएगी और उसे नाक की बजाय मुंह से सांस लेने को कहा जाएगा। ठीक है, आसान सी बात है कि आप उसका सर पीछे की तरफ कर दे, टेक लगा दे, उसको लगवा दे और बाजू उसके ऊपर कर दे ताकि जो खून का प्रेशर है वो नीचे की तरफ ना जाए। ठीक है, ठंडे पानी के कपड़े भिगो कर नाक और गर्दन पर रखें और नाक में रुई लगाकर उसको नाक की बजाय मुंह से सांस लेने की हिदायत करें। आप ज़रा ये बताएं कि अगर खेलते कूदते या चलते फिरते पाँव में मोच आ जाए तो आप क्या करेंगे? फिर सरबराह जो है उनसे सवाल करता है कि यानी उनकी एज के मुताबिक सवाल करता है ना, क्योंकि अक्सर बच्चे इस उम्र में ज़्यादा खेलते कूदते हैं, स्कूल में भी, घर में भी, बाहर मैदानों में भी वो खेलते कूदते हैं और अक्सर चलते फिरते भी जो हैं लोगों के पाँव में मोच आ जाती है। तो सरबराह ने कहा कि फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा ये सॉरी लड़के ने पूछा है। ठीक है, सरबराह
मोच आ जाने की सूरत में पाँव या जूते के नीचे रुमाल रखकर जिस जानिब पाँव मुड़ा हो उससे दूसरी तरफ उसे मोड़कर पाँव का तलवा ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है, और उसे बांध देंगे। पाँव को ज़ोर से झटका देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरह उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ठीक है। घर पहुंचकर जूते मोज़े उतार कर पानी को गर्म पानी से टकोर देंगे। टकोर जानते हैं ना कि कपड़े को या तौलिए को जो है गर्म करते हैं, निचोड़ कर फिर उस गर्म तौलिए या कपड़े को या रुई को जो है आहिस्ता आहिस्ता उस मोच वाली जगह पर रखते हैं और वो जगह गर्म हो जाती है। फिर ऊपर से कपड़ा बांध देंगे ताकि उसको आराम मिले, उस जगह को आराम मिले। चलने फिरने से मना कर देंगे यहाँ तक कि अच्छी तरह आराम आ जाए। अब उस पाँव पर जिसमें मोच आई है उसको हमने टकोर दिया है, सहारा दिया है, ठीक है। उस पर कपड़ा बांध देंगे और चलने फिरने से मना कर देंगे ताकि आराम आए। अगर जिस्म की किसी हिस्से की हड्डी टूट जाए तो फिर क्या करेंगे? लड़का फिर पूछता है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, कि अगर जिस्म की किसी हिस्से की हड्डी टूट जाए, मतलब कोई किसी जगह पे फ्रैक्चर आ जाए पाँव में, हाथों में, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में? तो सरबराह जवाब देते हैं, जहाँ तक मुमकिन हो नहायत आराम के साथ इस अज़ू को सीधा किया जाए। अज़ू हिस्सा, बदन का हिस्सा, ठीक है, लिखे इस पर, बदन का हिस्सा, ऑर्गन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो जिस ऑर्गन पर, जिस अज़ू में जो है फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए, तो पहले उसको सीधा किया जाए। यानी उस हड्डी को अगर बाहर निकली हुई है, बीच में टूट गई है, तो उसको पहले किसी तरीके से सीधा किया जाए। अब एक हाथ से नीचे की तरफ से और दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ इस अज़ू को थाम कर ज़रा झटके से हड्डी को सीधा किया जाए, क्योंकि जब हड्डी जो है वो जो सीधी होती है और वो बीच में टूट जाती है तो ज़ाहिर है उसकी डायरेक्शन जो है फिर दूसरी तरफ मुड़ जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आपने करना क्या है कि एक हाथ, अब जो है एक हाथ से नीचे की तरफ से और दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ इस जगह को जहाँ पे फ्रैक्चर आया है उसको ताम कर ज़रा सा थोड़ा सा झटके से झटका देकर उसको सीधा करें। फिर इस अज़ू के साथ ऊपर से नीचे तक लकड़ी की एक पट्टी बांध दी जाए। ये पट्टी इसलिए बांधते हैं कि चूँकि उनका जो है दोनों हड्डियों का राब्ता आपस में टूट जाता है और फिर वो बार बार जो है वो मुड़ने भी लगता है और तकलीफ़ भी बहुत होती है हिलने से। तो ये पट्टी, इस लकड़ी की पट्टी जो है, तख्ती जो है, ये इसलिए बांधते हैं कि ये हिले नहीं और मरीज़ को तकलीफ़ ना हो हस्पताल तक पहुंचाने में। अगर टांग की कोई हड्डी टूटी हो और फौरी तौर पर कोई लकड़ी मौजूद ना हो, उस जगह पर लकड़ी वगैरह ना हो, तो उसे दूसरी टांग के साथ बांध दिया जाए। इस तरह जो है, चूँकि दूसरी टांग जो है वो सही दुरुस्त होती है, तो बिल्कुल उसके साथ सीधा बांध दे, तो जब दोनों बंधेंगे तो फिर वो हरकत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह फिर मरीज़ को जो है वो तकलीफ़ नहीं होगी। कलाई या बाजू की हड्डी टूटी हो, कलाई आप जानते हैं ना, हाथ के जो तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं, और बाजू की हड्डी जो दूसरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कलाई या अगर बाजू की हड्डी टूटी हो तो इस टूटे हुए हिस्से पर लकड़ी की खच्चियाँ बांधकर हाथ को कपड़े की झोली में रख दे, ठीक है। खच्चियाँ ये जो है छोटे छोटे जो चिपटे तख्ते होते हैं उसको कहते हैं, अच्छा। और फिर उसको जब बांध ले तो फिर झोली में उसको रख दे कि ये हाथ भी जो है हिले जुले नहीं और मरीज़ को तकलीफ़ ना हो। अच्छा, ये बताएं, अगर किसी सबब वजह से बेहोशी तारी हो जाए तो इब्तिदाई इमदाद के तहत उसका क्या इलाज किया जाएगा? उसने ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अक्सर लोगों को बेहोशी हो जाती है और जो है दूसरे जो उसके साथ होते हैं वो फ़ौरन घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसकी फ़ौरी मदद करनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, ये इस बच्चे ने सरबराह से
پوچھا، ٹھیک ہے، کہ اس حالت میں کیا کرنا ہوگا۔